Today, very important topic, law of conservation of momentum. इस टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोमेंटम के मतलब पता होना चाहिए और हम लोग इससे पहले प्रीवियस टॉपिक्स में मोमेंटम को स्टडी कर चुके हैं. मोमेंटम is represented by P and is equal to the product of mass and velocity. Law of conservation of momentum statement क्या है? The momentum of an isolated system. What is isolated system? आम जुबान में, उर्दू जुबान में हम कह सकते हैं इसको अलग थलग निज़ाम. एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी ट्रांसफर ना हो, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहें. इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर थर्मस फ्लास्क की आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि थर्मस फ्लास्क के अंदर आप जिस चीज़ को भी डालते हैं, अगर किसी गर्म चीज़ को डालते हैं, आप देखें कि उसकी क्वांटिटी भी वही रहती है, मैटर का मैस चेंज नहीं होता और उसका टेम्परेचर भी काफ़ी देर तक वही रहता है. तो ये कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है. कंप्लीटली ऐसा सिस्टम वही होगा जो बिल्कुल भी ट्रांसफर ना करे एनर्जी. ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम अ सिस्टम थ्रू विच मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट ट्रांसफर. तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें टू या मोर देन टू बॉडीज इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं, तो उनका जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ हम लोगों के पास एक डायग्राम में ये दोनों चीजें बड़ी क्लियरली है. देखिए, we have a body having mass m1 and that body is moving with velocity u1. We have another body having mass m2 and this body is moving with velocity u2. Now what is the momentum of this body? The momentum of this body is m1 u1, because the momentum is equal to product of mass and velocity. The mass of this body is m1, the velocity of this body is u1, so the momentum of the body is m1 u1. Similarly, this body is having mass m2 and moving with velocity u2, so the momentum of this body is m2 u2. Now these two bodies are moving in same direction in a straight line. So what will be the momentum of these two bodies, total momentum of these two bodies? So we can find the total momentum of these two bodies by adding the momentum of this body and this body. So what will be the momentum, total momentum before collision? m1 u1 plus m2 u2. Now suppose this body has more velocity as compared to this one. इसकी velocity जो है इस body की velocity से ज्यादा है, तो क्या होगा? After some time ये जो इन दोनों के दरमियान में distance है वो कम होता जाएगा और both body will collide with each other. दोनों bodies एक दूसरे से collide होंगे. जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड होंगी, टकराएंगी, तो इन दोनों के मैसेज तो वही रहे, लेकिन होगा क्या कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू दिस वन, इसकी वेलोसिटी कम थी, तो ये बॉडी अपनी वेलोसिटी का कुछ हिस्सा इसको दे देगी, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो पहले वाली वेलोसिटी नहीं रही, चेंज हो जाएगी, कुछ ज्यादा हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी पहले की निस्बत कुछ कम हो जाएगी. मीन दोनों के मैसेज सेम रहेंगे आफ्टर कोलिजन, लेकिन इनकी वेलोसिटीज जो है वो चेंज हो जाएगी.
तो देखिए mass m1 ही रहा इस बॉडी का, this body has mass m2, इस बॉडी का mass m2 ही रहा, but velocities of both bodies will be changed. So the velocity of this body will become v1, the velocity of this body become v2. So what will be the momentum of this body after collision? By multiplying mass and velocity we can get the momentum of this body. So the momentum of this body after collision m1 v1 and momentum of this body after collision m2 u2. So what will be the total momentum of these two bodies after collision? Momentum of this body plus momentum of this body m1 v1 plus m2 v2. तो ये डायग्राम से मैंने आपको क्लियर किया, यही चीजें हम लोगों ने यहाँ लिखी है. How many bodies we have? We have two bodies. Consider an isolated system of two spheres. These are two spheres of masses m1 and m2. They are moving in a straight line with initial velocities. अब जो m1 mass वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी है u1 और जो m2 mass वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी है u2. तो रिस्पेक्टिवली से भी उसी तरतीब के साथ such that u1 is greater than u2, ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा है. तो क्या होगा? Sphere of mass m1 approach the mass m2 as they move. तो क्या होगा? कुछ देर बाद ये वाला जो स्फीयर है वो इस स्फीयर को अप्रोच कर देगा. अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 ये पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, m1 u1. इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 u2. तो व्हाट विल बी द टोटल मोमेंटम ऑफ दीस टू बॉडीज बिफोर कोलिजन? टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन m1 u1 plus m2 u2. दिस इक्वेशन विल 1. अब दोनों बॉडीज कोलाइड कर चुकी हैं एक दूसरे से, इनके दरमियान कोलिजन हो चुका है, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी ये हो चुकी है, तो एक दफा फिर इनके मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर सम टाइम एज m1 हिट्स m2 विद सेम फोर्स, तो जिस फोर्स के साथ ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा वो उसका एक्शन होगा, तो रिएक्शन इस बॉडी का इसके ऊपर होगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, m2 exert an equal and opposite reaction force on m1. जिस फोर्स से m1 m2 के साथ स्ट्राइक करेगा वो एक्शन होगा और m2 m1 पर जो अप्लाई करेगा वो रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Let their velocities become v1 and v2 respectively after collision. Collision के बाद उनकी वेलोसिटी v1. Similarly, momentum of this body before collision, final momentum of mass m1 v1, final momentum of mass m2 v2, total final momentum after collision क्या हो जाएगा? m1 v1 plus m2 v2. ये इक्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. कंडीशन क्या है? कि आइसोलेटेड सिस्टम. तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन is equal to total final momentum of the system after collision. Before collision का momentum हम लोगों के पास ये इक्वेशन 1 में अवेलेबल है. After collision का total final momentum हमारे पास इक्वेशन 2 में मौजूद है. तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. So this is the statement of law of conservation of momentum, and this is, you can say, the mathematical form of law of conservation of momentum. यहाँ two bodies हैं. अगर two से ज़्यादा interacting bodies होंगी, m1, m2, m3, तो उसी तरह उनके मोमेंटम्स क्या हो जाएंगे? m1 u1 m2 u2 m3 u3 and so. तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.